सर का जो टेक्निक है जिसके अंदर द whenever the Heikin-Ashi candle color changes color right at red time, then we have to short in the हाँ, future. वो उनका स्ट्रेटेजी है. Of course, Right. we have to have the Nifty 5000 Bs with us. ये हमारा स्ट्रेटेजी है. Right. So if otherwise we have to keep on looking at the chart. So what Right. if we can get a alert for this? Hmm. So मैं सुबह सोच रहा था, then I came up with this. So I was looking if somebody else has made something like this. Okay. So when I saw this one, so मेरा अभी स्क्रीन में मैंने to cut the long story short, मेरा ये जो ये लिखा है ना Kozlod Heikin-Ashi, हाँ, वो ऐड कर लिया मैंने. हाँ वो मैंने ऐड आती कर है. लिया. Yeah. हाँ तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. सो मतलब किसी को अगर बताना है तो ये वाला हमने लिया, कॉपी किया, एंड देन वी ओपन द ब्राउजर. फॉर एग्जाम्पल एक ब्राउजर खोला. आपको दिखाई दे रहा है सर अभी? हाँ दिख रहा है. जो मेरा स्क्रीन है वो दिखाई दे रहा है. ब्राउजर, हाँ ब्राउजर नहीं दिख रहा, बट आपका ये दिखा है. ये सिर्फ वर्ड दिख रहा है ना. तो मैं वर्ड बंद कर देता हूँ सर, आपको तो पता है. तो मैं वर्ड बंद करता हूँ और मैं ये शेयर करता हूँ. राइट. एक विंडो शेयर करता हूँ कोई भी. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा जो चार्ट नहीं, आपका ये बंद नहीं हुआ वर्ड अभी तक. हाँ सॉरी, शेयरिंग चेंज करना पड़ेगा. एक मिनट सर. Where are you based? I'm in Mumbai, sir. I'm in Mumbai. Where are you working? I live in Borivali, sir. Borivali. And where are you working? I work in this company, TK Tankers. I work as captain on oil tanker ships. Oil tanker trips? Oil tanker ships. Yeah. Crude oil tanker ships. So you are associated with HPC, BPC? No. But we also hire the bunkering, na? Yes, they have bunkering, but that was I also worked with Great Eastern some time back, about 3 years back. Because we have our shipping department, we hire the bunkering for the full year for transportation of furnace oil and then bitumen and all those things. Yeah. Okay, sir. मैं आपको ये दिखाता हूँ वर्ड. Okay, मैंने अभी वो ट्रेडिंग व्यू खोला. Yeah. Okay. That I am having. Okay. So for example, now this. अभी दिखाई दे रहा है सर आपको? ये दिख रहा है. ये दिख रहा है. So basically I went down and then I added as favorite. वो ठीक है. Okay. Add favorite कर दिया तो वो फिर वो इसमें तो vanilla this one it is browser ये. तो उसके बाद इंडिकेटर में चला गया and then you see इधर आया नहीं इंडिकेटर. नहीं, वो बंद करके नया खोलना पड़ेगा तब आएगा. नया खोलना पड़ेगा बिकॉज वो अपडेट नहीं हुआ. राइट. नहीं, उसी ब्राउज़र पे जाके उसको बंद करो, नया खोलो. कोई खोलो. इसमें चार्ट में खोला मैंने. अब आएगा. चार्ट खोला. अभी आ गया है. इसमें दिखाई दे रहा है. So now I click it and I click it, then it becomes like this. ये लाल green and red हो गया. So now this one it has happened. Now basically our idea is that now it shows like this, but actually it is this red part जो है वो red candle है. जो red. तो आप इसको ये वो स्टार्ट करो, Heikin-Ashi लगाओ ना इसको पहले आप. हाँ कर सकते हैं. We can do that also. अच्छा. Heikin-Ashi कर दिया. तो ये जो red zone है पीछे चार्ट में वो red है. Heikin-Ashi चार्ट है और ये green है, green चार्ट है. So of course I am not some expert, sir. I'm just telling you. मैं ये तो So basically now we have to set alert basically. So Heikin-Ashi में देखना है ना. हाँ हमको तो Heikin-Ashi में देखना है. हाँ तो Heikin-Ashi से लगा के अपने आप बताता है कि वो चेंज होएगा. Now the thing is our objective is what is our objective? Our objective is that we have to not अभी हम लोग मैं काम कर रहा हूँ for example और मैं देख नहीं सकता है. So then this should send me an alert to my phone or to my email system which will pop up and it will show that भाई तुम्हारा ये अभी कैंडल लाल हो गया है, बेचने के लिए तैयार हो जाओ. Then you go to your screen and see हाँ अच्छा ठीक है अलर्ट आ गया है and now you should be seeing that okay now I will sell based on your parameters. For example at that time if you feel you want to sell you sell, you don't want to sell you don't sell your future. ठीक है. That is okay. So now you want to send, I will remove all these alerts on the right so that we can set up a new alert. आपका ये फ्री वाला वर्जन है या पेड वाला है? Paid है sir. Paid. I'm using this for almost 2 years. I am like a amateur this one. So I have been using this for quite some time. But I've been thinking about this only. कि
पूरा दिन चार्ट देख नहीं सकता है बैठ के। हाँ, तो सही बात। हाउ टू गेट दिस अलर्ट्स, ये बहुत टाइम से लगा हुआ हूँ मैं बहुत। तो एनीवे दिस आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल। तो हमको कितना एकदम सिंपली एक अलर्ट बनाना है अभी। So now you see on the right hand side it is written create alert. This is one way of creating alert. You press this button, it will create alert. Or you can go to right click right hand side. अभी इस चार्ट में चले गए, आपको दिखाई दे रहा है ना सर, इसमें प्लस है, प्लस। हाँ, उसमें भी आप क्लिक कर सकते हो, उसमें भी आएगा। तो हम लोग सिंपल अभी यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अलर्ट, तो इसमें क्रिएट करते हैं, एक क्रिएट अलर्ट दबा दिया, तो अभी ये पैनल खुल गया आपके सामने। Okay, this is the normal panel. Now it is giving what values? Condition is Nifty, Aikinashi because it is that thing, and crossing value so and so. But हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये plain vanilla alert से कोई फायदा नहीं है, because it is only giving you some value, ये value से चालू होएगा। हमको intelligent alert चाहिए। In this trading view there are different types of alert. One is the simple alert, and this is called some kind of a dynamic simple alert, dynamic intelligent alert. तो ये कुछ ऐसा वाला alert है। उसमें आप जाओगे तो बहुत सारा टाइप है, बट लेट्स नॉट गो इनटू ऑल दैट। सिंपल बात करते हैं। कंडीशन में जाएंगे तो अभी देखो कंडीशन में क्लिक किया मैंने, डाउन एरो, इसमें जो 3 इंडिकेटर मेरा अभी फीड इन है ये चार्ट पे, वो दिखा रहा है। सो वॉल्यूम एंड कॉजलॉड दिखा रहा है। हाँ, तो हमको क्या चाहिए? हमको ये दोनों नहीं चाहिए ऊपर का, हमको ये कॉजलॉड चाहिए। तो हमने ये क्लिक किया कॉजलॉड को। कॉजलॉड को क्लिक करते आपने देखा पहले यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग था लिखा था, अभी HA ग्रीन आया। अभी आप क्लिक करेंगे ना तो HA ग्रीन है और HA रेड है। तो हमको HA ग्रीन है और HA रेड है, तो हमने समझा HA रेड कर दिया, मतलब हाइकीनाशी रेड, हाइकीनाशी रेड कर दिया। नाउ हमारे पास ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन? वंस, ओनली वंस पर बार क्लोज, वंस पर मिनट। हम ये वाला लेंगे, वंस पर बार। क्या मतलब इसका? क्या मतलब है वंस पर बार का? क्या मतलब है? हमने 1 घंटे का कैंडल, 1 घंटे का ये विंडो सिलेक्ट किया हुआ है। तो एवरी बार इट विल चेक कि भाई लाल हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, लाल हो रहा है कि नहीं होएगा, लाल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वंस पर बार का क्या मतलब है? मतलब कि वो फिर एक बार ही करेगा, फिर बाद में नहीं करेगा? नहीं, इट विल कीप ऑन चेकिंग। वंस पर बार इट विल कीप ऑन चेकिंग whether it is keep on checking till you remove it, till you remove it. आप वो कर सकते हैं। आप ओपन एंड लिखोगे तो वो चलता रहेगा, उसके नीचे वाला ना एक्सपायरेशन टाइम। अच्छा। और ओनली वंस का मतलब क्या हुआ? ओनली वंस का मतलब सिर्फ एक बार ही चेक करेगा। हाँ, एक ही बार चेक करे फिर खत्म हो गया वो अलर्ट। और फिर ये वंस पर बार क्लोज का क्या मतलब है? वही मतलब एवरी क्लोज ऑफ द बार इट इज गोइंग ट्राइंग टू चेक, सो यू कैन चूज व्हिच एवर यू वांट। यू सी वंस पर बार और वंस पर, हाँ, जो आपको देख सकते हैं कौन सा भी। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज दिस इज वेरी डायनेमिक। ओके, ठीक है। एज पर एवरीबॉडीज थॉट प्रोसेस दे विल कीप ऑन चेंजिंग, दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। बट हमको एक सिंपल अलर्ट चाहिए। वी कैन मेक इट एज कॉम्प्लिकेटेड एज पॉसिबल और एज सिंपल एज पॉसिबल। सो हमको एक सिंपल तरीका चाहिए जिससे 1 घंटे का हाइकीनाशी चार्ट, निफ्टी फ्यूचर, ये हमको अलर्ट आना चाहिए, सिंपल। अभी मुझे एक चीज बताओ कि ये जो आएगा अलर्ट, दिस विल कम ओनली फॉर निफ्टी और दिस विल कम फॉर द एंटायर वॉच लिस्ट? नो, इट ओनली कम्स फॉर द पिक्चर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट यू सेलेक्ट, उसी के लिए आता है। तो अगर मैं दूसरा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करूंगा तो वहां नहीं आएगा ये? उसमें आपको ये अलर्ट वापस डालना पड़ेगा, वैसा वाला डालना पड़ेगा। तो दैट मींस कि इट विल बी ट्रीटेड एज अ टू सेपरेट अलर्ट। यस। तो उसमें अपना जो लिमिट है ना, पेड वाले में कितना लिमिट है? 5 का है या 50 का है या 20 का है? 50 के ऊपर है सर, 50 के ऊपर बहुत है। नहीं, 50 नहीं है। आई थिंक 20 का लिमिट है। 50 अलर्ट्स तो है। मेरे पास प्रो प्लस है, मैंने काफी। अच्छा, आपका प्रो प्लस है आपके पास में? प्रो प्लस है आपके पास? प्रो प्लस, हाँ। ओह, तो वो कितने में लिया था आपने? वही जो ब्लैक फ्राइडे सेल लगा तभी लिया था सर। हाँ, तो कितने में लिया था? मैंने $20 कुछ है ना, आई थिंक। तो मैंने प्रो वाले लिया था 8300 समथिंग। हाँ, ये कुछ 14,000 को कुछ लिया था सर। अच्छा, आपने वो आगे वाला लिया था, उसमें 50 का ऑप्शन है, बराबर। 13 महीने का आता है। बट हम लोग को तो सर एक ही अलर्ट से मतलब है ना अभी। नहीं, अभी जैसे आपने निफ्टी में लगाया, बट आपको फिर स्टॉक में भी लगाना है तो लगा दीजिए ना सर आप। नहीं तो फिर कैसे लगाएंगे? एक अलर्ट तो आपने खा लिया, और अगर आपके मान लो 20 अलर्ट का है तो 20 अलर्ट ही लगा सकते हो आप। मतलब ये हुआ ना, 20 लगा दीजिए सर। बट एटलीस्ट यू आर हैविंग द, मे बी देयर इज सम अदर मेथड ऑफ डूइंग इट। मे बी इसके अंदर ही कुछ स्क्रिप्ट में लिख सकता है। आई डोंट नो ऑल दैट, मेरे को नहीं पता उतना मैं एडवांस नहीं है सर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज व्हाट इज देयर,
बिकॉज लर्निंग में ना सर टाइम लगता है काफी. अभी कोडिंग आई ऑल्सो वांट टू लर्न, बट विद द काइंड ऑफ प्रोफेशन आई एम इन एंड ये वो सब, और इतना सारा ज्ञान पीताम्बरम जी और साहू जी ही देते हैं, फिर आप भी बीच में कुछ कुछ ऑर्गेनाइज करते हो सब, और सब इम्बाइब करने में ही इतना ये लगता है. बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है. इट इज नॉट इजी. एंड क्या है कि जैसे पीताम्बरम सर ने उस दिन बोला सर सेमिनार के टाइम, जिसको परसेंटेज स्ट्रेंथ का जो क्लास अटेंड नहीं किया है पहले वाला, उनको तो सब कुछ बाउंसर गया रहेगा. ये कैन नॉट, जो आप बोल रहे थे ना बीच बीच में, आप बोल रहे थे कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, वो सही था आप जो बोल रहे थे. तो जो चीज परसेंटेज स्ट्रेंथ पता ही नहीं, तो फिर आगे का कैसे समझेगा समझेगा कैसे. मैं वही बता रहा था कि एक स्लाइड बना के दो, तो अभी वो स्लाइड बनाने में इंटरेस्ट नहीं, तो मैं बना के दूंगा स्लाइड उनको भी. बराबर बोल रहा है, पर वो भी बराबर बोल रहे थे कि वो ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में समझ में आ जाएगा. नहीं यार, एक स्लाइड बनाने में क्या दिक्कत है, एक स्लाइड तो बना सकते हो ना, बेसिक तो लिख सकते हो ना. देन आई कैन गो एंड सर्च दैट डेटा ना, कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मीन क्या होता है ना. वो अगर थोड़ा कुछ पता चल जाएगा ना, तो then we can go on the YouTube and check. राइट. मैं जब भी प्रेजेंटेशन बनाता हूँ तो मैं ये मान के बनाता हूँ कि दूसरे आदमी को कुछ भी पता नहीं है. हाँ, मेरे सारे पीपीटी ये कंप्लीट रहते हैं. करेक्ट. मतलब हर चीज है ना, आपका एंड टू एंड सोल्यूशन रहता है, यहाँ से चालू करो, यहाँ चालू. आई ट्राई टू वर्क ऑन योर सेम आइडिया, एंड ये मैंने ऐसे सोचा. सो बेसिकली नाउ अभी कमिंग बैक टू दिस, अभी HA रेड, जैसे हम लोग ने HA रेड ऊपर सेलेक्ट किया, तो हमने देखा कि वंस पर बार डाल दिया. उसके बाद में अभी दो चीज यहाँ पे ना, अलर्ट. अभी एक्सपायरेशन तो आपको पता है, एक्सपायरेशन है, जो डेट चाहिए हो तभी का डाल सकते हैं हम लोग. फिर अलर्ट एक्शन, नहीं तो आपने नहीं, अगर आपने ओपन एंडेड डालिया तो ये फॉरएवर हो जाएगा ना. हाँ, फॉरएवर हो जाएगा. ओपन एंडेड ठीक किया तो हाँ, वो मतलब अपग्रेड करने बोलता है. देखो जैसे ये क्लिक किया तो अच्छा. हाँ, व्हाटएवर इट इज, वी कैन सी व्हाट वी वांट. देन अलर्ट एक्शन, कौन सा टाइप का एक्शन चाहिए आपको. नोटिफाई ऑन ऐप, फिर शो ऑन पॉपअप, सेंड ईमेल. ये ईमेल का भेजेगा ना, आपका ईमेल बॉक्स में भरते रहता है वो, तो इसलिए मैंने अभी ये डिससेलेक्ट करके रखा है. और ये नीचे वाला क्या है, उसके नीचे वाला ये क्या है? नहीं, वेब हुक URL. आपका कोई साइट है या कुछ है तो उसमें वो देता है. अपना साइट हो कोई, हाँ, कुछ मतलब कुछ ऐसा साइट वाइट में है, ऐसा कुछ उसका है कि वो वेब में कहीं पे जाके दे सकता है करके. अच्छा, ओके, ठीक है. फिर बाद में ये मैंने क्लिक किया, सेंड ईमेल टू SMS. ये नहीं, आपने ऊपर लिखा ना, पहले प्लेस राउंड लिया, प्लेस राउंड अलार्म क्लॉक वंस. अच्छा, नहीं, उसके ऊपर वाले है ना, प्लेस ऑन नीचे. प्ले साउंड. ये प्ले साउंड में क्या होता है, आवाज आता है, क्रिंग करके आवाज जाएगा कि अरे अलर्ट आ गया. तो ये ज्यादा अच्छा है ना. आप चाय पीने चले गए, कुछ करने चले गए, और ये अलर्ट आएगा आपको. बराबर. अभी क्या है ना सर, हमने 1 घंटे पे लगाया हुआ है. ये अलर्ट हम 15 मिनट पे कर देना, तो आपका PC बचता रहेगा. बराबर. तो वो भी है. अभी वो बोलने वाले ना, जिसको समझेगा नहीं उसको तो मैं बोलूंगा तो समझेगा, पर आपको समझेगा कि जैसे मैं, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू डू कमोडिटीज अर्लियर, आई वाज ट्राइंग टू डू नेचुरल गैस, बिकॉज उसका मैं उसके बारे में पूरा टाइम सोचता रहता था, तो पूरा टाइम बचता है वो. बट एनीवेज, नॉट टू गो इनटू ऑल दैट, टू जस्ट कीप इट सिंपल. अगर आप समझो, अगर आप सेंड ईमेल कर दोगे ना, तो आपको ये अलर्ट आपके ईमेल में आएगा. ईमेल में भी आएगा, यहाँ में भी आएगा, दोनों में, सब में आएगा. ईमेल में भी आएगा, यहीं पे भी आएगा. बराबर. तो ये अभी समझो, फॉर एग्जांपल अभी ये है, तो अभी ये जो है हमने लिख दिया इधर अलर्ट नेम में, यही कॉपी करके लिख दिया. नाउ द थिंग इज दैट, आपको जब ये अलर्ट ट्रिगर होता है, अभी आप सोचोगे अरे ये अलर्ट ट्रिगर हो गया, तो आपको एक बेसिक 2-3 चीज चाहिए होगा. एक तो आपको चाहिए होगा कि भाई टाइम कौन सा ट्रिगर हुआ करके, व्हाट टाइम इट ट्रिगर्ड, सो दैट इज वन थिंग. एंड देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ व्हाटएवर दैट निफ्टी. अभी हम लोग निफ्टी देख रहे थे, निफ्टी फ्यूचर का प्राइस क्या था वो जब भी आया तभी. सो सिंपल है सर, ये बहुत ही मतलब बहुत वास्ट है ये अलर्ट का कहानी. तो अगर इंटरेस्ट है किसी को, तो यहाँ पे ये देखो, एक ऐसा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है. Click here to learn more about placeholders. Click here. You use special. You just go here and you click here. तो जो बेसिक है, ये जो है ना, ये बेसिक, ये क्या टाइप का एक्सचेंज है, टिकर क्या है, मतलब निफ्टी 50 जो भी है, प्राइस, जो प्राइस है, क्लोज प्राइस आएगा और वॉल्यूम आएगा. एंड नाउ व्हाट वी टेक दिस, ओके, वी कॉपी दिस वन, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट कॉपी दिस. अच्छा, तो ये जैसे आपने अलर्ट बताया, तो ये वहां आ जा रहा है, तो उसको लेके कॉपी कर दिया आपने. हाँ, ये मैंने कॉपी किया. अभी ये मैंने क्वेश्चन मार्क को क्लिक किया तो ये बॉक्स खुल गया. ये जो हेल्पलाइन है, हेल्प खुल गया.
तो इधर से मैंने इसको लिया और यहाँ पे जाके ये जो इन लोग का ये अपना सेमीकोलन है, दैट इज द डिवीजन, ये मतलब नेक्स्ट का, तो ये सेमीकोलन एंटर किया, तो ये यहाँ पे बॉक्स है, मैसेज बॉक्स, मतलब आपको क्या मैसेज आना जरूरी है, ये कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो आपको ये आ गया, टिकर प्राइस ये सब आ गया। पर आपको और एक चीज चाहिए ना, वो जो टाइम पे ट्रिगर हुआ, वो टाइम पे जो ट्रिगर हुआ, तो आप जस्ट गो डाउन लिटिल बिट एंड ये जो है नंबर 4, इसमें ये दिखाता है टाइम नाउ, मतलब क्या टाइम पे ट्रिगर हुआ ये। अच्छा, टाइम नाउ, करंट फायर टाइम ऑफ द अलर्ट फॉर्मेटेड इन द सेम वे एज टाइम, रिटर्न द टाइम नियरेस्ट सेकंड रिगार्डलेस ऑफ द रेजोल्यूशन, मतलब तुमको बता देगा वो क्या है। अच्छा, ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे ऐसे जाके सेमीकोलन एंड प्रेस्ड, तो अभी ये आपके पास ये अलर्ट बन गया। अभी आप अभी हमने क्या बनाया, ये निफ्टी पे 1 आवर पे, निफ्टी 1 आवर एंड Hakinashi red when it goes red, okay, and this one we have made, but the problem is that now it is red only, अभी लाल ही है वो। आपने ग्रीन वाला ही बनाना है, अभी हमको ग्रीन वाला भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये क्रिएट कर देते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये अच्छा। अभी ये हम लोग इसको ये जो कॉपी कर देते हैं, ये जो है ये कांस्टेंट था हमारा, ये जो नीचे का जो है ना ये वाला एक्सचेंज, तो ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं एक जगह पे, बिकॉज ये सेम रहेगा, और इसको क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट किया तो ये बंद कर देते हैं, तो ये आ गया इधर हमारा, अच्छा, रेड ऊपर आ गया वो है, ओके, हाँ, इसका अलर्ट टेबल में आ गया ये। नाउ फॉर एग्जांपल वी वांट टू मेक अनदर वन फॉर द ग्रीन, तो ये हम लोग इसमें लेके आ गए फॉर एग्जांपल, एंड वी मेड प्लस, ये प्लस क्लिक किया, ये प्लस किया, तो ये क्रिएट एड अलर्ट फॉर कोजिकोड, ये अपने आप खुल गया अभी एड अलर्ट, तो एड अलर्ट दबा दिया, एड अलर्ट दबाते ही ये अलर्ट बना दिया इसने इधर, अच्छा, बना भी दिया, रेड ग्रीन बना दिया, तो पर उसने जो बनाया है वो एकदम प्लेन वनीला रहेगा, वो हमको उसको खोलना है, तो उसको डबल क्लिक किया तो ये खुल गया। तो एच ग्रीन वंस पर बार वी हैड डिसाइडेड, हम लोग वंस पर बार बनाएंगे, नोटिफाई एन ऐप, शो, सेंड ईमेल, और उसके बाद में ये है, इसको ये दबाया सेमीकोलन और एंटर एंड कंट्रोल वी, तो वो सारा जो इंफॉर्मेशन था उसका वो यहाँ पे आ गया। और वैसे ही ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर क्या है, निफ्टी 1 आवर, बेसिकली हमको पता नहीं चलेगा ना तो अलर्ट क्या है करके, बिकॉज इट्स ओनली शो HA ग्रीन, सो निफ्टी 1 आवर पे ये अलर्ट है, तो अभी ग्रीन अलर्ट भी बन गया हमारा, और सेम, सो ये दोनों बन गया, ग्रीन भी हो गया, रेड भी हो गया। So now we have these 2 alerts. So whenever they will trigger, they will tell us. तो अभी जैसे इस वाले चार्ट में देखें तो ये देखो, ये बीच में 2 छोटा सा कैंडल आया, तो वहां भी ये करेगा ये, वो आते रहेगा सर, वो आते रहेगा। अभी मैंने ऐसा बना दिया, अभी हम लोग को चेक करता रहना पड़ेगा। वी हैव, मतलब जब भी अलर्ट आएगा तो हमको चेक करना पड़ेगा। एंड देन मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि एवरी कलर चेंज पे आएगा ये, एवरी कलर चेंज, एवरी कलर चेंज इट विल पॉप अप। अच्छा, आपको आया अलर्ट आ जाए, आज ही सोचा मैंने सर, ये रिलायंस का आया, मैंने रिलायंस पे डाला था तो रिलायंस का आया। हाँ, तो दिखाओ कैसा अलर्ट आया मेरे को ना। ओ मैंने एक मिनट में देखता हूँ कि हिस्ट्री है क्या। हाँ, एक अलर्ट लॉग में देखो ना, अलर्ट लॉग में, अलर्ट लॉग नीचे वाले में, हाँ यहाँ पे, वो डिलीट कर दिया मैंने सर। अच्छा, आया था अलर्ट आया था। तो उसमें क्या आता है आपको, उसमें क्या आता है? आया था कि बाय अलर्ट आया था। अच्छा, बाय अलर्ट आया था, और फिर आपको ईमेल भी आया, ईमेल भी आया। हाँ, मेरा फोन पे सेट है, वो फोन पे आता है, जो ऐप है ना फोन में, तो वो दिखाता है, ऐसे बज होता है इधर आके ऐसे। अब वही मैं बोल रहा, एज यू विल स्टार्ट, then just अभी now my system I've been working on for quite some time, like almost maybe 1 year or something, so इसीलिए मेरे को पता है कि क्या होता है करके। So but basically it shows me a banner जैसे आपका नोटिफिकेशन आता है ना व्हाट्सएप, तो वैसे नोटिफिकेशन आता है मुझे। तो हाँ, उसमें रहेगा शायद। तो उसमें आवाज भी आता है? आवाज भी आता है, आवाज भी आता है। बढ़िया है ना, फिर ये बढ़िया है ना, फिर ये बार लगा के छोड़ दीजिए और बस, और क्या काम हो गया आपका। ओके। हाँ, तो वैसे आपको अलर्ट आएगा। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी माय फोन, नहीं दिखाई दे रहा शायद। नहीं वो वैसा स्क्रीन नजर आ रहा है, वो आपको शेयर करना पड़ेगा भाई, वहां पे जाके जूम खोल के वहां से शेयर करना पड़ेगा। यू टू जॉइन थ्रू दैट वन एंड देन, ठीक है, आ जाएगा, नो प्रॉब्लम।
हाँ तो मेरे को anyway, व्हाट्सएप कर दो, मेरे को हाँ व्हाट्सएप कर मैं दो, आपको व्हाट्सएप कर दो, आपको व्हाट्सएप हाँ कर दो। आपको व्हाट्सअप कर दो। तो बेसिकली ऐसे अलर्ट आता है और फिर बाद में यू कैन कीप ऑन एंड बेसिस योर इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर हैविंग, what you have a feel of things, then you can take a trade, so you don't need to watch it full time. हाँ ये अच्छा है, अच्छा है। The logic is that आप पूरा दिन वो स्क्रीन देख के क्या फायदा है। ये वो जो है ना विवेक बजाज, वो उन्होंने वो बोला था, उनका एक सेमिनार में था ये बात कि तुम पूरा दिन स्क्रीन देख के क्या करोगे यार, you will be only stressed, so you have to only look at the screen when actually some trade is come. So now you are, now this is what I feel, I and then this is what I thought कि जब ये ट्रिगर आएगा तभी आके देखो, हाँ भाई तुम्हारा बिकने का आ गया, and then you see your price pattern, जैसे साहू सर बोलते हैं ये वो, so many things you can put one trend line this that, and basis that you can take a trade, and that time you can sit. So तो ये तो सुपर ट्रेंड में किसी भी लगा सकते हैं, ये तो इसका किसी में मतलब भी डाल सकता है, किसी में कहीं भी भी डाल डाल सकते हैं। हाँ, अलर्ट अलर्ट सिस्टम तो कहीं भी डाल सकते हो आप। हाँ कहीं पे भी डाल सकते हैं आप, and you at any given time we are trading only 1 or 2 or 3 scripts for example, बराबर जैसे निफ्टी हो गया, रिलायंस हो गया या टीसीएस हो गया, तो वैसे करके हमको जो चाहिए उसमें हम डाल सकते हैं, एंड ज्यादा अलर्ट भी डालेगा तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे क्या ये वाली बात भी है। पहले पहले मैं बहुत सारे अलर्ट डाल देता था, फिर मुझे मैं कंफ्यूज हो जाता था, तो देन आई स्टार्टेड रिमूविंग, देन आई ओनली पुट व्हाट इज रिक्वायर्ड, जिसमें काम कर रहे हो वही रखोगे ना आप, सही बात है। करेक्ट, जो चाहिए वही रखो, बाकी सब फेंको, व्हाई यू नीड दैट, और सो बेसिकली यू डोंट नीड सो मेनी अलर्ट्स, व्हाट यू नीड इज अ रिलायबल अलर्ट व्हिच विल टेल यू, मतलब आपका ट्रेड जाना नहीं चाहिए टाइप्स। सो नाउ टुडे ओनली मॉर्निंग आई थॉट अबाउट इट एंड ऑल दीस थिंग्स आई डिड, तो मैंने सोचा कि आपको आपको बताओ कि ऐसे ऐसे है करके। अभी देयर आर सो मेनी पीपल इन आवर ग्रुप हु आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, सो अभी ये एक छोटा चीज है, उन लोग उसके ऊपर बिल्डअप करके नहीं, काफी लोगों को नहीं भी पता है ना। अब जैसे आई वाज नॉट अवेयर, आई एम हैविंग दिस योर पेड अकाउंट, बट आई वाज नॉट अवेयर हाउ टू मेक द अलर्ट, हाउ टू यूज इट। आज पता चला मेरे को, नाउ आई कैन यूज इट एनीवेयर, नाउ आई नो हाउ टू मेक इट, अभी समझ में आ गया मेरे को। तो अच्छा है। और क्या क्या इसमें ये मतलब ट्रेडिंग में कर सकते हैं, आप क्या करते हैं? और मैं प्राइस एक्शन एनालिसिस करता रहता हूँ सर, फुल कैसे टाइम करते बैठ हैं के आप? मैं, कैसे करते हैं? लाइव मार्केट में ही सेम, अच्छा जो बेसिकली साहू सर सिखाते हैं ना कि लंबा टाइम फ्रेम में चलेगा, ये करो वो करो। So basically I am trying to do this on a very short time frame, like 15 minutes. 15 minutes. So basically I only paper trade right now, but the same idea is same. जो उनका idea है ना, only price action analysis, basis volume and price action analysis, trend line and support and resistance, nothing else. So basically अभी last Friday I had 2 trades. के 2 ट्रेड है रिलायंस पे, आई हैव 1 लॉट ऑफ रिलायंस बेसिकली, तो मैं उसके ऊपर सोचता रहता हूँ। सो वन बेसिकली क्या है कि उस दिन मैं आपको लिखा भी था वही चीज जो अपने पीताम्बरम जी बोल रहे हैं कि हाइकिनाशी चार्ट हम लोग, सो इफ वी कंबाइन दैट सेम चार्ट विद आवर प्राइस चार्ट, जो नॉर्मल प्राइस चार्ट है हमारा जिसमें कैंडल स्टिक बनता है, और जो हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट places basically. So support and resistance तो हमको मिल जाएगा of with technical, this is very like ultra short term trades, not positional long term. But combining with Pete sir's ideology, Heikin-Ashi chart समझो हमारे पास है, and we have the trend line what Sahu sir has shown, and we have the support resistance as per what he has shown as a horizontal. तो हमको पता चल गया कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हमको ये आएगा, क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, और वही टाइम पे हमको पीट सर का भी ये हाकिनाशी चेंज ओवर मिल गया समझो। तो हमको एक मोरलेस सर्टन है ना कि ये यहाँ से आपको अभी रिलायंस में है सर, रिलायंस सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं आप? सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाया इसमें? सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाया इसमें? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से फॉर एग्जांपल नाउ वी हैव दिस वन, जो सॉरी नॉर्मल कैंडल, नॉर्मल कैंडल है, नॉर्मल कैंडल प्राइस पैटर्न, ये सब ये कर देता है। सो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वन, देन वी गो ऑन द डेली चार्ट फॉर एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल आई वाज डूइंग रिलायंस से फॉर एग्जांपल, सो रिलायंस आ गया, ये इधर आ गया रिलायंस, खुला गया,
Oh, hello. Hello. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो, या ओके ओके ओके, या ओके 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 ओके, थैंक यू। नहीं नो, चलो, नहीं नहीं, वी आर सेम यार, उसमें क्या है। नहीं, विल हैव द गेट टुगेदर ना, विल हैव गेट टुगेदर, तो वहाँ वहाँ मिलते हैं अपन, या विल मीट देयर ना, या या ओके, या ओके, थैंक यू, बाय। और पीएनबी जैसे स्टॉक्स में भी आपको 6% से ज्यादा की गिरावट रही। रियलिटी स्पेस भी पीछे नहीं था गिरावट का क्लियर कर ध्यान दिखाने में, जिसमें आईटी से कोल्टे बाटे डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में 5% से ज्यादा का फॉल देखने को मिला। मेटल स्पेस से खराब नतीजों के बाद आती है और बाजार की इस तरह की गिरावट रही थी। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर 9% से ज्यादा का फॉल आया और साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील को गिरावट का रिजल्ट दिखाई रहा था। क्या था, स्टील में भी आपको दबाव देखने को मिला और अपने आप जी के हिट कॉल देखें तो बाजार की गिरावट में यहाँ पर जो जिस तरह के सेल कॉल्स आते हुए नजर आए वो काफी कारगर साबित होते हुए दिखे, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बागले जी ने आपको बताया था, एक बैंक पर भी विशेष जी की राय थी और वेदांता समिति ने भी आपको रेकमेंड किया था। तो ओवरऑल आप देखिए बाजार का मोमेंटम जो था वो आज नीचे की तरफ था। ये देखना होगा कि जो ट्रेंड है कल के सत्र में रिवर्स होता है या नहीं। बाजार को ज्यादा जानकारी देने के लिए तो शेयर बाजार को आज स्पष्ट हुआ हफ्ते के पहले ही कारोबारी से, मगर कमोडिटी बाजार में बाहर। दरअसल रूस यूक्रेन में तनाव से कच्चे तेल में उबाल दिख रहा है। ब्रेंट $96 के पार पहुंच चुका है, साथ ही सोने और चांदी के भाव भी 3 महीने की ऊंचाई पर है। हमारे साथ कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा है, उनसे जरा हम बातचीत करते हैं। तनाव से तेजी जो हम ब्रेंट में देख पा रहे हैं, सोने चांदी में जो जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, मतलब बाजार को झटका लगा पहले ही हफ्ते में, लेकिन कमोडिटी बाजार में बिल्कुल इसके उलट काम कर रहे हैं। बिल्कुल छोटी, और जिस तरह से ये तनाव बढ़ने की खबर मार्केट में आई तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही जैसे ही मार्केट ओपन हुआ जबरदस्त तेजी आई। बुलियन में, क्रूड में, मेटल में चौतरफा तेजी का माहौल बना। और ये तेजी क्यों बनी, ये जानने समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रूस यूक्रेन टेंशन का कमोडिटी मार्केट से क्या कनेक्शन है। तो आप देखिए कि जो रूस है वो गए ओपेक देशों में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। युद्ध होने वाला है, ये बहुत बड़ा तनाव बढ़ता है तो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। शेयर मार्केट तो आपको पूरा जीवन हो जाएगा। हाँ, $96 प्रति बैरल के ऊपर चला गया। दूसरी बड़ी बात कि रूस को सबसे ज्यादा नेचुरल गैस से एक्सपोर्ट करता है और इसलिए आप आज देखिए आप नेचुरल गैस के दाम भी 5-6% बढ़ गए। जहां तक सवाल बुलियन मार्केट का है, सोने चांदी का है, तो जब भी दुनिया के आर्थिक हालात या राजनीतिक हालात खराब होते हैं तब सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ती है। और इसीलिए आज देखिए आपकी गोल्ड एक घंटे में 49,500 रुपए के ऊपर चला गया। जबरदस्त बाइंग आई क्योंकि
सुरक्षित निवेश के तौर पर डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो निवेश के बाकी विकल्प हैं वो फीके पड़ने लगते हैं। और अभी आपने बताया कि मार्केट में कितनी गिरावट आई है, शेयर मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी और घरेलू बाजार में भी, तो इसका सीधा फायदा निवेश के तौर पर लोगों को मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी? इस पर आज हमने कई बड़े एक्सपर्ट से बात की है। उनका ये कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन का तनाव बढ़ता है तो जाहिर तौर पर ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन अभी मार्केट के सारे फंडामेंटल बॉन्ड हो गए हैं। सिर्फ रूस और यूक्रेन का विवाद बाजार पर हावी है और उसी पर मार्केट की आगे की चाल निर्भर करेगी, टिकेगी। तो सबसे दिलचस्प ये होगा देखना कि अब आगे के हालात होते क्या है। हालांकि वैसे भी फंडामेंटली क्रूड का मार्केट स्ट्रांग है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। गोल्ड का मार्केट भी मजबूत बताया जा रहा है क्योंकि लंबे समय से गोल्ड एक रेंज में घूमता आ रहा था, तो अब वहां पर भी बाइंग लौट रही है। तो कुल मिलाकर हालात अभी तेजी के ही मिल रहा है जी। बिल्कुल, तो कमोडिटी बाजार में तेजी का माहौल के चलते एक बड़ा लक्ष्य हम लोग कमोडिटी बाजार पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिलने में तमाम कारणों को में अच्छी अर्जी दाखिल करने में माना नहीं जा रहा है कि ये इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा और ये मार्च तक आ जाएगा। सेबी ने दी अर्जी के मुताबिक सरकार अपनी 5% हिस्सेदारी बेचेगी। तो क्यों खास है एलआईसी का आईपीओ बताने जैसा कि बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का कर दी गई है और जो डिटेल्स आई है डीआरएसपी में कि जिस तरह से 5% हिस्सा है जो इस आईपीओ किया जाएगा, 31.5 करोड़ शेयर है जो आईपीओ के जरिए दिए जाएंगे। इसके अलावा रिटेल निवेशकों के लिए 35% का रिजर्वेशन होगा। जो है पिछले 1 साल से ये बात उठा रहा था कि रिटेल निवेशकों के लिए 35% का हिस्सा होगा। इसके अलावा पॉलिसी होल्डर के लिए 10% तक का रह सकता है। कर्मचारियों के लिए 5% का रिजर्वेशन आईपीओ में हो सकता है। इसके अलावा डीआरएसपी में सबसे इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो एम्बेडेड वैल्यू का है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एम्बेडेड वैल्यू सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू होता है। एम्बेडेड वैल्यू का मतलब होता है कि भविष्य का जो भविष्य मौजूदा जो कारोबार है उसमें उसकी भविष्य में क्या कमाई होगी। तो डीआरएसपी के मुताबिक एलआईसी का एम्बेडेड वैल्यू है 5,40,000 करोड़ और 5,40,000 करोड़ के मल्टीपल में ही इसका वैल्यूएशन तय होगा। तो ये जो कैलकुलेशन किया गया है, अगर ये जो एम्बेडेड वैल्यू का मल्टीपल है वो अगर 2 होता है तो मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। इशू साइज 53,000 करोड़ होगी और जो एक शेयर का प्राइस आता है वो 1,700 रुपए के करीब आएगा। अगर जो मल्टीपल है वो 2.5 का होता है तो मार्केट कैप 13,50,000 करोड़ तक होगा। इशू साइज जो है आईपीओ का प्राइस जो है वो 68,000 करोड़ होगा और एक शेयर की प्राइस जो है वो 2100 रुपए के करीब आएगी। इसी तरह अगर हम हायर एंड पे जाए 3 का मल्टीपल भी ले तो मार्केट कैप 16 लाख करोड़ तक का होगा। इशू साइज जो है 80,000 करोड़ का होगा और एक शेयर की प्राइस 2500 रुपए होगी। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जो अभी जो लिस्टेड कंपनियां हैं, 3 लिस्टेड कंपनियां हैं, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू और एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू का जो एम्बेडेड वैल्यू का मल्टीपल है वो 3 तक है और एचडीएफसी लाइफ का जो एम्बेडेड वैल्यू का जो वैल्यूएशन है वो 5 गुना तक है। इसके अलावा डीआरएसपी में ये भी बताया गया है कि जो पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन होगा करीब 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है। एलआईसी के 13.5 लाख एजेंट्स है जो देश के 91% से ज्यादा जिलों में जो है एलआईसी की पॉलिसी की पहुंच है। ये तमाम चीजें जो है एलआईसी के डीआरएसपी में बताई गई है। तो एक नजर में एलआईसी के आईपीओ पर तमाम बड़ी बातें बताने के लिए अनुराग आपका बहुत धन्यवाद। तो ये तो खबर रही एलआईसी के आईपीओ से जुड़ी हुई। अब आगे बढ़ते हैं और क्रिप्टो पर जरा बातचीत करते हैं क्योंकि सवाल यही है आजकल कि क्रिप्टो का होगा क्या। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से कहा है कि क्रिप्टो को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत जारी है और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्षों की सहमति के बाद क्रिप्टो करना फैसला होगा। I've said that we are in the process of consultation. Whatever decision the government is going to take will be after the consultation. Now, if you're asking me, therefore, what I'm going to talk about here, I will not be able to tell you.
आइए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं। लोकतंत्र में वोट तंत्र का महापर्व चल रहा है। यूपी में आज दूसरे चरण की 55 सीटों पर वोट डाले जाने के वही थे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में भी आज वोटिंग हो रही है। अब देखना यह है कि जनता जनार्दन अपने लिए कैसी सरकार इस पर से पता उठेगा आने वाले 10 मार्च को। तो ये तमाम जो आज गतिविधियां चल रही है यूपी में दूसरे चरण का की वोटिंग, उत्तराखंड में पहले चरण का चुनाव 70 सीटों पर मतदान और गोवा में भी 70 सीटों पर वोटिंग इस वक्त की जा रही है। और यूपी के शाहजहांपुर से शिव कुमार हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और गोवा से हमारी सहयोगी वैदगी तानेसर जुड़ रही है, उनसे भी जरा चर्चा करते हैं। सबसे पहले शिव, आपका अनुसरण करें यूपी में दूसरे चरण का मतदान 55 सीटों पर जो मतदाता है अपना मत डाल रहे हैं और कई बड़े बड़े दिग्गज चेहरे उनके किस्मत भी यहाँ पर है दांव पर लगी हुई। दूसरे चरण का मतदान क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है? ज्यादा नहीं रही जितना अनुमान लगाया जा रहा था। और दूसरा अगर उत्साह कितना देखने को मिला है, कितना पॉजिटिव वोटिंग देखिए 3 बजे तक की बात करें तो अब तक 46.86% वोटिंग यहाँ हो चुकी है। हालांकि शुरुआती दौर में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम था, लेकिन जैसे जैसे मौसम अच्छा होता गया वैसे ही वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता गया। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 घंटों में वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा, क्योंकि लोग अब निकलना शुरू हुए हैं। अगर आप शाहजहांपुर की बात करें तो ये वीआईपी सीट है और यहाँ से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना प्रत्याशी है, जो 1989 से लगातार पार्टी भाव तक विधायक हैं और किसी की सरकार नहीं, लेकिन वो लगातार जीतते आए हैं। तो उनके आगे बहुत बड़ी चुनौती इस बार है कि नवी बार इस सीट को हासिल कर सके। हालांकि शाहजहांपुर की बात करें, अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर पिछड़ी जो जाति के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि लोन वोट बैंक जो बहुत मजबूत है। इसके अलावा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी बहुत निर्णायक भूमिका में रहता है। इस बार ये चीज जरूर देखने को मिली है कि कई मतदान केंद्रों में जो मुस्लिम मतदाता है उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। फिलहाल अब 3 बजे हैं और वोट प्रतिशत 46.86 हुआ है। अगले कुछ वक्त के बाद यानी कि 1 घंटे के बाद ये प्रतिशत बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त वोटिंग किस प्रकार आगे बढ़ रही है उसका अपडेट हमने लिया। गोवा का रुख करते गोवा में पहले दौर की वोटिंग चल रही है वैसे फिलहाल अब तक आपने क्या कह दी? जी बिल्कुल, गोवा में ये वोटिंग है, लेकिन गोवा में वोट करने वाले मतदाताओं का आंकड़ा काफी ज्यादा है, क्योंकि 3 बजे तक की अगर हम बात करें तो 3 बजे तक कम से कम 30% से भी ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मतलब जो सीएम प्रमोद सावंत इनका चुनावी क्षेत्र है, साथ ही वहां से सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 70% वोटिंग